Hi guys, so this is just my story of how I secured a rank of 15,535 in NEET PG 2024 this year. First disclaimer, this is absolutely not an awesome rank or a great rank that you should chase. This is a very average rank, mid-rankers, what you say, right? At this rate, at this rank, you will get a clinical seat in a decent enough college so that you can pursue your degrees further, but you may or may not get your dream branch depending on what you have, right? The creamy branches, dermatology, medicine, radio, you are not getting those, right? But as I say, for me, this was my best attempt, and hopefully I can share with you in the following video the mistakes that I made and the things that I did to get this rank from a rank of 84,000 in NEET PG 2023 and from a rank of 1.5 lakh when I gave it the first time in NEET PG 2022, right? So I have included all the timestamps in the video ताकि टाइम बर्बाद न हो किसी का भी, ना तुम्हारा ना मेरा. एंड तो फिर हम लोग देखते हैं कि how I achieved what I achieved and what are the things that I did, what are my sources, how I approached MCQs and overall what was my approach to this entire exam and कैसे मैंने अपना रैंक इम्प्रूव किया. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट ऑल बिगिन्स ड्यूरिंग इंटर्नशिप, राइट? तो लेट मी टेल यू वेयर आई डिड माई MBBS फ्रॉम. आई एम अ 2016 बैच graduate MBBS from Kalinga Institute of Medical Sciences, Bhubaneswar, right? एंड मैंने अपना UG यहीं से किया. आई एम ओरिजिनली फ्रॉम कोलकाता बट माई पेरेंट्स शिफ्टेड हियर जब मेरी यहाँ पे MBBS की सिलेक्शन हुई थी, राइट? तो आई एंटर्ड हियर एंड मेरा शायद पहला आपका नीट बैच था इन 2016. एंड उसके पहले तो आपको पता ही होगा कि नीट कितनी बार हुआ था बिकॉज ऑफ पेपर लीक एंड स्कैंडल्स एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? उसके पहले तो AIPMT हुआ करता था. दोज हु आर फ्रॉम दैट बैच माइट नो ऑल ऑफ दिस स्टफ. So throughout my MBBS, I was not a very good student, first of all, right? I was a topper in school. I was my school topper also. I was my biology topper in my school also, right? And all the accolades and everything, Olympiad topper and all of that stuff. But जब आप enter करते हो ना MBBS तो सारे ही toppers होते हैं. तो you kind of, the topper tag, it's very difficult to get a topper tag amongst all the toppers who are already there, right? So throughout my MBBS curriculum, I was a very average student. I used to study most of the time only before the exams. पूरा साल I used to study but not that much very seriously. And then past का papers इस्तेमाल करके university के past papers, all the important topics from seniors वैसे करके I used to pass my exams. And I got a 62.5% शायद in my final exam also, right? प्रिपरेशन नीट PG का मुझे सबसे पहले पता चला ड्यूरिंग व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर. एंड उस टाइम पे मैरो आया था शायद एडिशन 4 दैट आई गॉट फ्रॉम बॉट फॉर माई सेल्फ, राइट? एंड आई यूज्ड टू स्टडी फ्रॉम दैट मेनली फॉर तुम्हारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स. कभी MCQ सॉल्व नहीं किए, राइट? एक भी MCQ उनमें से ना PYQ ना सॉल्व किया. आई डिड नॉट इवन नो हाउ टू अप्रोच दिस नीट PG एग्ज़ाम. मैरो के बाद आई स्टार्टेड आपका जो भाटिया होता था भुवनेश्वर में, उसका सैटेलाइट सेंटर होता था भाटिया का. सो आई यूज्ड टू वेंट गो देयर विद माय फ्रेंड्स एंड थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स मैंने वहीं से पढ़े. फाइनल ईयर भी मैंने मैरो से ही पढ़ा था मेनली, ठीक है? एंड वैसे ही आई क्लियर्ड माई फाइनल पेपर्स. तो इंटर्नशिप के टाइम पे आई नोटिस्ड वन थिंग, अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स एक्चुअली बिकेम वेरी सीरियस फॉर नीट PG, राइट? फ्रेंड्स इन द सेंस की क्लासमेट्स, मेरे फ्रेंड्स का ग्रुप जो है दे डिड नॉट वी वर नॉट एक्लेमेटाइज टू द होल नीट PG का कॉन्सेप्ट. कितना कॉम्पिटिशन है, वी जस्ट थॉट कि चलो एक MCQ का पेपर होगा दे देंगे. नीट UG तो क्लियर किया है तो नीट PG भी क्लियर कर ही लेंगे, कितना ही होगा. द बिगेस्ट मिस्टेक, hands down. Okay. So during our internship, I and most of my friends, most of my close friends, right, they all focused on तुम्हारा कि अच्छे clinical skills कैसे लेना है, exposure कितना मिलना चाहिए patient का. We used to stay entire time in the hospital because first in time, in your life we are getting the doctor वाली feeling, right? You are discharging patients, you are doing stuff, you are doing procedures, you are taking part in procedures. Sometimes तो first year PGs भी चढ़ जाते थे because we were so eager to take the sutures because first year PGs का batch उस साल लेट आया था because of COVID and stuff. And then जो आपका जो second year batch था, we were very close with them, so that happened, right? So there was that also, but we had a lot of fun during internship, right? And primarily मेरा भी उस टाइम पे यही गोल था कि चलो इंटर्नशिप में अच्छे से प्रोसीजर सीखना है, स्किल सीखना है, क्लिनिकल एक्यूमेंट सीखना है, देन उसके बाद फिर जाके एक साल अच्छे से पढ़ेंगे नीट PG के लिए, उसके बाद क्रैक करेंगे. A lot of my friends who were actually studying during the NEET PG,
and gave a very good attempt उस point of time पे. Some of them secured ranks of 15,000, 14,000, and they secured anesthesia. Most of the girls were there, right? They secured seats, very good seats of anesthesia in KGMC लखनऊ, ठीक है, KGMU लखनऊ. उसके बाद फिर MMC में उनको anesthesia वगैरह मिल गया. Some of them took in gynae state कोटा की वजह से वेस्ट बंगाल में भी उठा लिया था, in RG गौर या फिर NRC, बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस में उठा लिया. One of my friends actually got DNB in one of my classmates actually got DNB in pediatrics Gangaram mein, because and she took DNB at 2500 rank because she wanted to clear PLAB and then go forward, and DNB में कोई bond नहीं होता, right? And she cleared PLAB both, but she stayed back, she did not go. She is completing her PDA from Gangaram right now, right? So there is that. So we were a group of very tight knit 6 friends, right? एंड जब इंटर्नशिप ख़त्म हो रहा था तो मी एंड 2 ऑफ माई फ्रेंड्स डिसाइडेड कि चलो हम लोग जाएंगे दिल्ली एंड डैम से पढ़ेंगे, राइट? बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन क्लास 12th एंड मेरे फैमिली में मेरे जो मामा हैं, ही इज़ एन ऑर्थोपेडिशियन. माई पेरेंट्स आर नॉट डॉक्टर्स, दे आर बोथ सैलरीड पीपल, जॉब वाले, ठीक है. And so we always had this fascination of doctors and everything. And my mama was a doctor. He did his PG from AIMS New Delhi in orthopedics, right? So before he got that PG, he used to come and we were living in Chandigarh at that point of time. So he used to come and stay in our house and उनके सारे friends आते थे. My mom used to host this grand dinner after the PG exam जिसमें सारे students भरे होते थे हमारे घर पे, because my mom was all fascinated about this whole कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा वाला concept. And I was also very much interested in that because biology अच्छा लगता था यार. लेकिन then again, just because if you're good in biology you don't clear NEET undergraduate, right? You have to be good in physics and chemistry also. So there is that. तो उस टाइम पे मैंने उनसे डैम्स का नाम सुना था. सो अदरवाइज डैम्स तो हमारे कॉलेज में इतना कोई पॉपुलर नहीं था. मोस्ट ऑफ द पीपल वर डूइंग फ्रॉम प्रेप लैडर या फिर मैरो ओनली, राइट? तो देन इन 2022 आई पास्ड आउट एंड 2022 में मैं और मेरे 2 फ्रेंड्स चले गए गौतम नगर पढ़ने के लिए TND फ्रॉम डैम्स. एंड डैम्स का TND जो है, पहली बार हमको पता चला कि भाई पढ़ना कैसे है, राइट? क्योंकि अभी तक तो कंटेंट सारा हमने पढ़ा था यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए, लेकिन जो असली MCQs होते हैं, कितना टफ पेपर होता है, द कॉम्पिटिशन, द शेयर कॉम्पिटिशन, दैट आई गॉट टू नो व्हेन आई जॉइन डैम्स इन गौतम नगर इन न्यू दिल्ली, राइट? तो मी एंड माई 3 फ्रेंड्स थे. तो इट वॉज कि हम लोग का स्ट्रगल्स बहुत होते थे, बट हम लोग हमेशा साथ में होते थे. वी वर लिविंग इन द सेम फ्लैट, खाना बनाना, पढ़ाई करना, क्वेश्चन पूछना एक दूसरे से, वो सब करते थे. उसके बाद आई गॉट इंट्रोड्यूस टू द लाइब्रेरी कल्चर इन गौतम नगर, द स्टडी रूम वाला. कभी ज़िंदगी में तो कॉलेज टाइम पे कभी लाइब्रेरी गया नहीं पढ़ने के लिए, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज की घर पे पढ़ूंगा एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. तो या I joined the library and I was studying there, and some pictures of my library I will also try to show in between. आप देख सकते हो उसको. And I was studying in the library and I saw other people study also, and there was that I used to do the TND. हर हफ्ते हम लोग का TND का शेड्यूल आता था. We used to study for that subject, and उसके बाद हम लोग जाके एग्ज़ाम देते थे. उसके बाद डिस्कशंस होता था. And the teachers at DAMS are at really good. Like सुमेर सर का रेडियोलॉजी जो था बहुत अच्छा था. उसके बाद फिर दीप्ति मैम का गाइडी तो बेस्ट है, लाइक हैंड्स डाउन बेस्ट है. उसके बाद अरोड़ा सर है फॉर ENT. उसके बाद फिर सेठी सर है तुम्हारा फॉर पीडिया एंड ऑल ऑफ दैट. मतलब ऑल द टीचर्स वेर वेरी गुड. तो हमको तो सारे ही टीचर्स, अचिन मेहरा सर एंड उनके पॉलिटिकल जोक्स भयानक, मतलब दे आर तो अमेजिंग. तुषार मेहता सर, ओ माय गॉड, तुषार मेहता सर को जब हमने फर्स्ट टाइम देखा, आई सॉ द फैन फॉलोइंग ऑफ सर. मतलब पूरा क्लास जो है ना सीटियाँ बजा रहा था, बिकॉज सर इज़ दैट पॉपुलर एंड दैट गुड ऑफ अ क्लिनिशियल एंड अ टीचर, राइट? सो देयर इज़ दैट. तो वहाँ पे जाके पता लगा कि पढ़ना कैसे है. लेकिन मैंने गलती क्या की, माई बिगेस्ट मिस्टेक व्हेन आई वेंट टू दिल्ली वॉज दैट कि आई यूज़ टू स्टडी फ्रॉम TND, ठीक है? आई यूज़ टू स्टडी TND के लिए मैं पढ़ता था. TND का डिस्कशन भी अटेंड करके आया. आई ऑलवेज केप्ट ऑन थिंकिंग कि अगले दिन जो है बिफोर बिगिनिंग अ न्यू सब्जेक्ट आई वुड रिवाइज द TND वाला चीज़, लेकिन कभी नहीं किया. एंड दैट पाइल्ड अप टू सच एन एक्सटेंट कि नवंबर जाके जब एग्ज़ाम के 2 महीने 3 महीने पेंडिंग थे, आई वाज लाइक कि भाई कुछ याद ही नहीं है. एंड आई सॉ अ वीडियो, आई रिमेंबर वेयर ऑर्थो वाले सर ऑफ मैरो जो है अब्बास अली, उन्होंने कहा था कि इफ़ यू डोंट रिवाइज it is as good as not reading it in the first place, right? And that happened with me.
मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि आई वॉज ऑलवेज चेसिंग ऑल द न्यू रिसोर्स आउट देयर. मतलब मैरो का एडिशन शायद 5 चल रहा था, फिर 6 आ गया, तो आई स्टार्टेड बाइंग 6 के नोट्स की क्या नया होगा वो पढ़ेंगे, ठीक है. उसके बाद फिर प्रेप लैडर के रैपिड रिविजन के नोट्स पढ़ने लगा. कोई भी कोचिंग का जो भी एवरीबडी अपना उनका वो होता है, ओपिनियन होता है कि ये वाले नोट्स अच्छे, वो वाले नोट्स अच्छे. एंड गौतम नगर आपको कोई भी क्या बोलूँगा, सोर्स मटेरियल की कमी तो आपको होगी नहीं, ठीक है. देयर इज़ नो डर्थ ऑफ सोर्स मटेरियल इन गौतम नगर बिकॉज every PDF is available there in some shop or the another. Okay, so there is that. तो कभी गौतम नगर का अगर मेरा एक्सपीरियंस का होगा तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो वहाँ पे कैसे क्या होता है, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. तो वो हुआ, गौतम नगर वाला सीन हुआ, ठीक है. मैंने कभी रिवाइज नहीं किया वेरी ऑनेस्टली. गिव मी 1 सेकेंड, पसीना बहुत हो रहा है, गर्मी यहाँ पे, ठीक है. सो तुम्हारा जो है गौतम नगर वाला सीन हुआ, ठीक है. रिवाइज नहीं कर पाया. उसके बाद फिर DVT आया. जब DVT आया तो आई फिल्ड द DVT पूरा, लेकिन उसको भी मैंने ढंग से रिवाइज नहीं किया अनटिल एंड अनलेस वो जनवरी आ गया, राइट. एंड तो जनवरी के बाद से मैंने DVT को 3-4 बार रिवाइज किया, ठीक है, अच्छे से किया. उनका PYQ का बाप आया था आपका डैम्स का, वो मैंने किया, ठीक है. लेकिन आई ऑलवेज सो यूज टू सी द वीडियोज़ एंड रीड द नोट्स. क्वेश्चन आंसर कभी किए ही नहीं, ठीक है. बहुत हार्डली मैंने शायद PYQs किए थे, वो भी सारे सब्जेक्ट्स के मैंने किए नहीं. मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स छोड़ भी दिए थे. लाइक एनाटमी में इतना डर गया था उससे कि आई लेफ्ट दी होल सब्जेक्ट. आई रेड बायोकेमिस्ट्री के रैपिड रिविजन मैरो का फॉर 1 वीक पूरा, बट देन एंड में जाके आई कुडंट आंसर इवन अ सिंगल क्वेश्चन. मतलब आई डिड नॉट नो कि व्हाट डिड आई स्टडी, राइट. तो बहुत सारे लैप्सेस तो थे. आई वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है. मैं दिन में 10-10 12-12 घंटे नोट्स पढ़ता था, ठीक है, पागल हो जैसा, ठीक है. पीठ दर्द हो जाता था लाइब्रेरी में, बट स्टिल आई यूज टू कीप ऑन रीडिंग द नोट्स. बट दैट्स इट. जस्ट हार्ड वर्क करने से भाई नीट PG नहीं क्लियर होता, ठीक है. आपको क्वेश्चंस करने हैं, आपको GTs करने हैं. मैं जब गया था एग्ज़ाम देने के लिए, आई रिमेंबर और उसके बीच में तो आपको पता ही है भाई, हर साल पोस्टपोनमेंट का नौटंकी तो होता ही रहेगा. 2023 में भी हुआ था, एंड उसमें मेरा 2-3 दिन तो आराम से चला गया, ठीक है, कि पोस्टपोनमेंट होगा नहीं होगा, होगा तो अच्छा है, तो ये पढ़ लेंगे वो पढ़ लेंगे. बीच में आई इवन वेंट टू अटेंड वो निकिता ननवानी मैम का जो 150 श्योर शॉट है, दैट आई ऑल्सो वेंट टू अटेंड. लिखा सब, बट रिवाइज नहीं किया. दैट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ 2023 का लर्निंग नीट PG का, कि भाई अगर रिवाइज नहीं करोगे ना, अगर आप क्वेश्चंस नहीं करोगे, अगर आप GTs नहीं करोगे, तो कोई चांस ही नहीं है नीट PG क्लियर होने का, राइट. अगर आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं है, वो तो 0 कट ऑफ हो जाएगा, तो आप तो किसी भी इंस्टीट्यूट में पैसे के दम पे ले ही सकते हो. लेकिन अगर आपको गुड इंस्टीट्यूट में लेना है तो थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा ही उससे, ठीक है. तो मैं GT नहीं देता था बिकॉज मुझे स्कोर्स का डर लगता था कि अगर स्कोर्स कम हो जाएगा तो मोटिवेशन कम हो जाएगा. भाई बकवास है, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल कोई मोटिवेशन वगैरह कम नहीं होता. अगर आप GT नहीं दोगे तो आपका पेपर क्लियर होने से रहा, ठीक है. मैं बताऊंगा उसके बाद फिर क्या हुआ, ठीक है. तो देयर वाज दैट मिस्टेक. उसके बाद MCQs कभी उतने ज़्यादा किए नहीं, बस थ्योरी के बेसिस पे गया. व्हेन आई सैट डाउन टू गिव द 2023 नीट PG का पेपर, मुझे याद है मेरा फरीदाबाद सेंटर पड़ा था. मैं एक दिन पहले निकल गया था फ्रॉम दिल्ली वहाँ से. आई सैट एंड आई वो रियलिटी चेक मिलता है ना आपको कि भाई इतना क्या क्या नहीं किया, व्हाट आर द थिंग्स वर पेंडिंग, ठीक है. वो मेरे आंखों के सामने पूरा फ्लैश हो. बट आई वाज लाइक चलो DVT से जितना आता है आई विल गिव द पेपर एंड गए. एंड 2023 का पेपर वॉज वेरी PYQ फोकस, राइट. अगर किसी ने बहुत अच्छे से PYQ सारे किए होते, TND सारा किया होता, DVT अच्छे से पढ़ा होता बहुत बार, और MCQ सॉल्व किए तो उसका पक्का निकल जाना था. तो फिर मैंने पेपर दे के आया. आई वॉज वेरी हैप्पी ऑल्सो बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को आ रहे थे. फर्स्ट टाइम आई वॉज सॉल्विंग MCQs. आई वॉज लाइक कि चलो आता है कुछ ना कुछ. आई वॉज इन चंडीगढ़ आफ्टर 10 years सीइंग माई फ्रेंड एट द मॉल व्हेन द रिजल्ट्स केम, एंड 84,000 समथिंग कुछ ऐसा रैंक आया था. एंड मेरी फट गई, पैरे तोले ज़मीन खिसक जाना वाला चीज़ हुआ, राइट. माई फ्रेंड कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी कि यार कितना रैंक है तेरा. आई वाज लाइक कि भाई ऐसा है. एंड शी वाज ऑल्सो लाइक कि यार गया, इस बार का तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है. वी 3 friends went and one of my friend actually got 30,000 rank and now she is doing MD medicine from a deemed university. वो तो अलग बात है. बट 3 दोस्तों में से एक का निकल गया. बहुत खुश हुआ उसके लिए, लेकिन फिर बुरा भी लगा कि अब क्या करे यार. बिकॉज यार डैम्स में व्हेन वी वर इन गौतम नगर इन दिल्ली उतना भी चीप नहीं है. रेंट होता है, खाने पीने का एक्सपेंसेस. तब जाके हम लोगों को पता चला. आई रिमेंबर इन गौतम नगर व्हेन हम तीनों बैठे थे, हम लोग मंथली कैलकुलेशंस कर रहे थे एंड वी वर लाइक कि भाई
5,000 का हम लोग कैसे खा रहे हैं पर पर्सन ईच मंथ? लगता भी तो नहीं है, सिर्फ तो दाल चावल खा रहे हैं, ठीक है। बाकी एक्सपेंसेस को मैं तो कैलकुलेट भी नहीं कर रहा। फिर हमारा रेंट था तीनों 3 BHK का एक 45,000 रेंट था पर हेड। आप कैलकुलेट कर लो, 15,000 का रेंट था, ठीक है। एंड पेरेंट्स से उस उम्र में मांगना भी बहुत अजीब लगता है, ठीक है। एंड आफ्टर द दिल्ली वाला सारा रिजल्ट्स वगैरह निकला, पेरेंट्स फॉर ऑल्सो कॉलिंग कि चलो वापस आ जाओ, ड्रॉप वॉप नहीं लेना अब, दोबारा जो भी करना है यहीं से करना, ठीक है। जॉब वगैरह लेना एंड एवरीथिंग करना, बिकॉज दे वर ऑल्सो राइट, माई पेरेंट्स और वर ऑल्सो रिटायरिंग, 1 साल बाकी था उनका उस टाइम पे फॉर फॉर रिटायरमेंट एंड एवरीथिंग, तो परेशान तो होंगे ही। So I came back to Bhubaneswar and I joined a job as a medical officer in a hospital यहाँ पे, and I was working there for two months, okay, and मेरा अच्छा टाइम भी था, मतलब I used to work, and मेरा फ्रेंड भी मेरे साथ था, मेरा क्लासमेट ही था, वो मेरे साथ था। फिर मतलब 5 साल में तो उतना कभी उससे बात नहीं हुआ, लेकिन फिर अच्छे दोस्त बन गए हम लोग, ठीक है। फिर 3 मेरे जो दोस्त थे, वन ऑफ माई गैंग के जो फ्रेंड्स थे, ही ऑल्सो ज्वाइंट, ही वॉज वर्किंग इन अपोलो एंड दी अदर हॉस्पिटल वेयर आई वॉज वर्किंग एट द सेम टाइम, कलिंगा हॉस्पिटल भुवनेश्वर। तो हम लोग काम करते थे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे काम करने का एंड एवरीथिंग। फिर जो मेरा दोस्त था उसको बीच में MD, ही गॉट अ रैंक ऑफ समथिंग 40,000, तो उसको बीच में आपका MD हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन मिल गया, तो ही वेंट टू गांधी हॉस्पिटल इन हैदराबाद, इफ़ आई एम करेक्ट, सॉरी मिस्टेक्स होगा तो ठीक कर लेना, ठीक है। हैदराबाद में वो चला गया MD हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन करने। तब फटी यार, ठीक है, बिकॉज सारे दोस्त जो है कुछ ना कुछ PG उठा रहे थे, ठीक है। मेरे जो और बाकी के 2 गैंग मेंबर्स थे वो लोग तो ड्रॉप लिए ही नहीं, वो लोग तो ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन को ज्वाइन कर लिए थे राइटली आफ्टर इंटर्नशिप ओनली, ठीक है। तो दे वर अर्निंग, तो नाउ आई वॉज देयर, कि क्या करूँ अब, मुझे समझ नहीं आ रहा, हाउ डू आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगैन, राइट। तो उस वक्त मेरे को मिला BTR वाला चीज़ जो जैनब मैम की थी, शायद मेरे दोस्त ने ख़रीदा था सेरेबेलम का, एंड मैंने उससे थोड़ा उधार पे लिया था, ठीक है, कि यार भाई थोड़ा देखने दे कि BTR है वाला चीज़ क्या है, ठीक है। तो आई फाउंड कि BTR काफ़ी शॉर्ट में है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट्स को मैम ने जो है 1-2 आवर्स 2.5 आवर्स, लॉन्ग सब्जेक्ट्स, इंटरमीडिएट सब्जेक्ट्स, शॉर्ट सब्जेक्ट्स, ऐसा मैम ने सारा कवर किया था, ठीक है। तो आई बस लेके ठीक है, मैं जॉब के साथ आई कैन कवर दिस, राइट। तो आई स्टार्टेड डूइंग इट एंड मैं कवर कर भी रहा था। देन आफ्टर 3 months ऑफ डूइंग द जॉब, ठीक है, जस्ट आफ्टर 3 months ऑफ डूइंग द जॉब आई वॉज लाइक कि ना भाई मेरे से नहीं होगा, ठीक है, आई नीड टू स्टडी फुल टाइम। सो आई कन्विंस्ड माई पेरेंट्स कि चलो फुल टाइम पढ़ना है मेरे को, एंड लेट्स पूरा झोंक देते हैं, वैसे भी जनवरी में एग्ज़ाम होगा तो फिर क्या ही देखना है, ठीक है। तो देर आई वॉज, आई कम्प्लीटेड, मैं गेव माई रेजिग्नेशन वगैरह, ठीक है। आई सेड गुड बाई टू माई फ्रेंड, शी वेंट एंड जॉइंड वहाँ पे मेडिसिन, MD मेडिसिन MMU मौलाना में, ठीक है। एंड आई वॉज लाइक कि चलो ठीक है, आई वॉज हैप्पी फॉर वर, बट आई वॉज लाइक कि यार अब तो क्रैक करना ही पड़ेगा। तो 3 of my friends, me, my another friend Shreya and my another friend Ankita, ठीक है, तो हम तीनों ने दोबारा स्टार्ट किया। अंकिता वॉज इन जमशेदपुर, शी वॉज डूइंग अ जॉब ऑल्सो, ठीक है, एंड शी हैज़ सीक्रेट अ वेरी गुड रैंक इन दिस नीट PG ऑल्सो, राइट। सो देर इज़ दैट, श्रेया ने भी बहुत अच्छा रैंक लिया है इस बार, ठीक है। सो देर इज़ दैट, तो हम तीनों का ही ऑलमोस्ट निकल गया इस बार, लेकिन तब तीनों ही ड्रॉप लेके बैठे दोबारा, ठीक है। तो श्रेया और मैं तो बिना जॉब के ही बैठे हैं, ठीक है। अंकिता चलो जॉब के साथ कर रही थी, ठीक है। द डे आई लेफ्ट द डे आई लेफ्ट माई जॉब, अगले दिन मैं गया था डैम्स का, जो भुवनेश्वर का सेंटर था, कि चलो डैम्स का ऑलरेडी आदत था 1 साल का, ठीक है, एंड मेरा सब्सक्रिप्शन भी एक्सपायर हो गया था। आई वाज लाइक कि चलो आई विल टेक इट फॉर अनदर ईयर एंड देन आई विल प्रिपेयर अगैन। तो आई टुक अप डैम्स TND, वहाँ पे डैम्स का लाइब्रेरी भी टुक अप। आई केम डाउन, आई हैड सम स्वीट्स फ्रॉम अ शॉप। अगले दिन when in the morning when I woke up, my cheeks were पूरा swollen and paining like something, ठीक है। I went to the ENT देख के बोला कि आप USG करवा के लाऊं, ठीक है। I was like ओके क्या है ये, ठीक है। एंड देन शी इज़ लाइक कि यार अब तो पेन किलर्स वगैरह दिया, एंड इज़ लाइक अगर नहीं ठीक हुआ तो फिर FNAC करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो वहीं पे मेरे तोते उड़ गए, ठीक है। उसके बाद आई आस्क्ड सम PG एंड ही सेड कि यार लग रहा है प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। सुन के मतलब हालत ख़राब हो गया है मेरे को तो आंखों के सामने पूरा अंधेरा ही दिख रहा है। वैसे लाइक कि बाप रे बाप, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, आई नो इट्स अ बेनाइन ट्यूमर एंड एवरीथिंग, बट स्टिल
it's a tumor growing on my face, what to do, ठीक है. I got multiple USG scans done, ठीक है. And I was so scared because they were giving me painkillers पे painkillers, ठीक है, antibiotics पे antibiotics, and nothing was working, ठीक है. And I was पूरा distressed कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूँ, and even if I will be able to do anything or not. So sorry, recording चल रहा है, ठीक है. तो yeah. Then I went to Kolkata to my family doctor. He saw the whole thing and he was like कि भाई तेरे को मम्स हुआ है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, मम्स ही हुआ है. 3 months इनको लगा डायग्नोसिस करने के लिए, मेरे कॉलेज वालों को, ठीक है, जो भी था. 3 months लगा, द डॉक्टर्स वेरेवर्स जिस हॉस्पिटल में दिखा रहा था मैं, उनको लगा 3 months टू डायग्नोज, कि उनको पता नहीं चला मम्स है. और मेरे फैमिली फिजिशियन ने देख के बता दिया मम्स है. अगले ही दिन वो ठीक हो गया, चलो टेंशन ख़त्म. आई केम बैक, आई स्टार्टेड स्टडिंग, ठीक है. आई वॉज स्टडिंग फ्रॉम डैम्स का TND, मैं वही TND को सारा पढ़ता था. आई वॉज फॉलोइंग द सेम शेड्यूल ऑलमोस्ट दिल्ली वाला, ठीक है, कि TND के सारे नोट्स अब हाथ से बनाना है, ये पढ़ना है. साथ में मैं BTR भी कर रहा था साथ ही साथ. एंड लेकिन धीरे धीरे आई एक्चुअली शिफ्टेड एंटायरली टू द BTR ओनली, बिकॉज मेरे को BTR काफ़ी अच्छा लगने लगा. आई काइंड ऑफ बिकेम मैम का फ़ैन and Zendab ma'am का फ़ैन, because and I think most of us will agree also, धीरे धीरे if you are a BTR subscriber आप फ़ैन बन ही जाते हो मैम के. लाइक मैम का जो टीचिंग है, इट्स रियली अमेजिंग, ठीक है. हाउ कैन शी शॉर्टन अ सब्जेक्ट, इतना शॉर्ट कर देते हो कि आप बार बार रिवाइज कर सकते हो ना, वो है. आई माइट बी फैन बॉइंग राइट नाउ, बट एवरी जो भी मेरा सक्सेस इस पॉइंट ऑफ टाइम का, ठीक है, even not this great rank, but for me it is a success for an average mid ranker. तो I dedicated it solely to Zendab ma'am and also to my teachers at DAMS जिन्होंने मेरा बेस तैयार किया था. सी बट हाथ पकड़ा एकदम क्रिटिकल मोमेंट पे जिसने हाथ पकड़ा था मेरा, दैट वाज Zendab ma'am. जब मैं बहुत डरा हुआ था कि अगले साल क्या होगा नहीं होगा, तो आई वॉज वेरी मच स्कैर्ड कि क्या होगा नहीं होगा, ठीक है. सो देयर वाज दैट. तो BTR का पढ़ना स्टार्ट किया, साथ साथ मैंने GT सॉल्व करना स्टार्ट किया. एवरी 2 weeks आई यूज़ टू गिव अ GT. 15 दिन में एक बार तो मैं GT देता था, एंड मोस्टली वो मैरो के प्लेटफॉर्म्स ही होता था मेरा, ठीक है. शुरुआत में मैंने जब GT देना स्टार्ट किया, भाई उसको रिव्यू करने में ना मेरे को पूरा 1 हफ्ता लग जाता था, ठीक है. पहले दिन हार्डली, बिकॉज आई यूज़ टू रीड ऑल द डिस्क्रिप्शन वहाँ पे जो लिखा होता था, ठीक है, जितना कुछ होता था उसके पर्ल्स, उसके सारे डिस्क्रिप्शंस, ठीक है. एंड इट वॉज एक्चुअली गुड, बिकॉज आपको जो पहली बार आप GT दोगे ना ऐसा वाला, ठीक है, आप जब पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि उस टॉपिक में है क्या. बिकॉज मैरो का ये एक चीज़ अच्छा है कि पूरा टॉपिक पढ़ा देता है वो क्वेश्चन के थ्रू ना. सो दैट आई फाउंड वेरी, हाँ, इट्स टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो, एंड सम पीपल से कि आपको वो चीज़ आपके नोट से पढ़ना चाहिए, विच आई एक्चुअली डिड इन द लेटर पार्ट ऑफ माई प्रिपरेशन, जब मैं GTs को दोबारा रिव्यू कर रहा था. लेकिन इनिशियल पार्ट में यूज़ टू रीड द एंटायर थिंग, ठीक है. तो ऐसे करके 2 weeks में मैं एक GT तो फिनिश कर देता था, अच्छे से पूरा रिव्यू करना. उसके साथ साथ आप पढ़ते रहो. मैम का जो BTR का शेड्यूल देती थी मैम, ठीक है, आई ट्राइड टू डू इट, बट कभी वैसे सक्सेसफुल नहीं हुआ. वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स मेरा होता था, मैं हमेशा ना जब भी सोचता था कि चलो आज से नया साइकिल अगर स्टार्ट हो रहा है तो मैं जल्दी जल्दी सार्पो के सब्जेक्ट सारे फिनिश कर लूँगा, स्किन एनेस्थीसिया, रेडियो, साइकेट्री एंड ऑर्थो. उसके बाद आई विल टच दी लॉन्ग सब्जेक्ट्स इन इंटीग्रेटेड वाले करूँगा. वैसा मत करो, ठीक है, अपने हिसाब से देखो. हमेशा शॉर्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट करना भी अच्छा आइडिया नहीं होता है, ठीक है. बट या इफ़ यू आर मास्टरिंग और शॉर्ट सब्जेक्ट्स तो आपका जो स्कोर है वो ड्रास्टिकली बढ़ जाता है, बहुत ड्रास्टिकली बढ़ जाता है. एंड दैट आई रियलाइज्ड. तो मेरा GT का जो पहला GT का स्कोर था, आई रिमेंबर शायद समथिंग 98 मेरा करेक्ट था. बाकी सारा जो था वो रॉन्ग एंड स्किप्ड वाले में सब कुछ मिला के था, राइट. सो देयर वाज दैट. सो वन थिंग आई कैन मैंशन फ्रॉम माई होल GT का करियर, अगर मैं आपको GT के स्कोर्स दिखाऊँ, चलो मेरा मैरो तो चलो एक्सपायर हो गया है, बट अगर मैं आपको GT के स्कोर्स दिखाऊँ ना, मेरा कभी भी आज तक GT में 298 के अबव आया ही नहीं, ठीक है. 100 करेक्ट मेरा मुश्किल से टच हुआ था. इवन इन ऑल द डैम्स का GT जितना भी दिया था, जितने भी मैरो के GT दिए थे, ठीक है, जितने भी मैंने CBT दिए थे, सब में ही मेरा वैसा ही स्कोर था. 300 कभी पार हुआ ही नहीं, ठीक है. तो आई वॉज वेरी मच स्केयर्ड ऑल्सो कि क्या करना है. बट एक चीज़ इस बार मैंने डिटरमिन किया था कि चलो जो भी हो, लेकिन चाहे जो भी स्कोर हो, आई विल टेक दैट एज अ लर्निंग टूल. बिकॉज ज़ेडा मैम ना हमेशा ये वाला चीज़ आपको बोलती है कि आपका GT स्कोर चाहे कुछ भी आए, ठीक है, येस, गुड GT स्कोर विल गिव यू अ मैसिव कॉन्फिडेंस, ठीक है. और वो चाहिए भी एग्जाम के लिए. जब आप इतने हाई स्टेक्स एग्जाम को दे रहे हो ना, तो आपको कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता है कि चलो अच्छे से मैं पेपर दे सकता हूँ. आई नो बिफोर एंड दैट आई कैन डू इट. अगर आपका ऑल इंडिया रैंक मॉक टेस्ट में अच्छा आ जाएगा तो फिर आपको ही लगेगा ना कि चलो एक कॉन्फिडेंस आता है कि चलो क्लियर हो जाएगा. वो अनसर्टेनिटी नहीं रहता उतना. बट मेरे लिए तो था. आई मैनेज टू कम्प्लीट ऑल द 20 GTs जितने थे, ठीक है, एंड आई रिवाइज देम ट्वाइस, ठीक है.
क्योंकि हम मेरा क्या था, मैं और मेरे फ्रेंड जो थे ना, हम लोग, मैं और मेरी फ्रेंड जो है श्रेया, ठीक है, तो वी यूज़ टू हमेशा पूरा टच में थे। लाइक चलो मैंने अभी ये किया, अभी मैंने वो किया, अभी मैंने GTs कितने रिव्यू किए, अभी मैंने इतने किए। शी डिड एंटायर GTs फ्रॉम डैम्स, आई डिड माई एंटायर GT फ्रॉम मैरो। बस यही था। कभी कभी मैंने डैम्स के GT दिए थे, बाकी उतना कभी नहीं दिया था, ठीक है। तो कमिंग टू माई सोर्सेज, अगर मैं एक ही बार में अपना सोर्सेज को बोलूँ, ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके, तो देखो मेरा टैम्स का TNT का जो नोट्स थे 2024 के, आई डिड दैट, ठीक है। उसके अलावा BTR तो मैंने पूरा ही किया। आई रिवाइज्ड BTR 5 to 6 टाइम्स। दैट आई थिंक एक्चुअली हेल्प मी गेट व्हाट द रैंक दैट आई गॉट, कि मैंने 5 से 6 बार जो है पूरा BTR अच्छे से रिवाइज़ किया था। बोनस BTR में सिर्फ 2 बार ही रिवाइज़ कर पाया था, ठीक है, सारा रिवाइज़ नहीं हुआ था, बिकॉज आई वॉज लाइक कि चलो मेन BTR को तो पहले मास्टर करो। एंड मैम बार बार यही बोलती है कि मेन BTR को पहले मास्टर करो, उसके बाद आप कंटेंट उसमें ऐड करते रहो, ठीक है। और आई बॉट फर्स्ट एड इन 2023, कभी उसको पढ़ा नहीं। एंड देन मैम ने बोला कि मैम ने पूरा फर्स्ट एड भी कवर कर दिया है, यू नो, इन द एंटायर सिलेबस। तो आई वॉज लाइक कि चलो दैट इज़ वेरी नाइस। फिर आई यूज़ टू वॉच सम आदित्य सर के वीडियोज़, यू नो, कि कम पढ़ो बट बार बार पढ़ो, जो वाला चीज़ था। तो आई वॉज लाइक कि नहीं, दैट आई विल डू, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आई विल स्टिक टू दैट, कि मैं कम पढ़ूंगा लेकिन बार बार पढ़ूंगा। जितना मैं पढ़ के जा रहा हूँ उसमें से जितना आ जाएगा तो फिर आई कैन आंसर एटलीस्ट दैट, राइट। सो दैट वॉज माई मेन स्ट्रैटेजी। तो मैंने BTR को आपका 5 से 6 बार पढ़ा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं उसको, डैम्स का TNT किया। GTs मैंने 2 बार रिवाइज़ किया, ठीक है। इनिशियली तो मेरे को 2 हफ्ता लगता था एक GT को रिवाइज़ करने के लिए, फिर बाद में आई वॉज एबल टू डू एक पूरा GT का रिव्यू मैं 2 दिन में फिनिश कर लेता था। इसके अलावा जो मैंने एक चीज़ किया है, विच आई गॉट टू नो फ्रॉम माई सीनियर्स एंड एवरीथिंग, इज़ लाइक एवरी डे मैंने 100 MCQs हर रोज़ सॉल्व किए हैं। एवरी डे आई हैव सॉल्व 100 MCQs, ठीक है। और मैंने जो टैग्स लगाते होते थे, एम्स का टैग, नीट का टैग, क्लिनिकल का टैग, इमेज बेट का टैग, एंड बीच में एक टैग जो मेरे को मिला, जो एक्चुअली मुझे लगा कि काफ़ी यूज़फुल है, वो है एपोनिम्स करके एक टैग होता है, ठीक है। लाइक हम लोग जब बच्चे होते थे ना क्लास 11th में, हम लोग केमिस्ट्री का टेस्ट में जाते थे, तो मैम बोलती थी कि भाई तुम सिर्फ यू नो नेम्ड रिएक्शंस ही पढ़ लो सारे के सारे, तो फिर पास हो जाओगे। तो फिर दीज आर काइंड ऑफ लाइक दैट। तो एपोनिम्स आपको बता देगा कि सारे के सारे नेम्ड जितने भी सिंड्रोम्स है, नेम्ड साइंस है, सिम्टम्स है, ठीक है, नेम्ड टेस्ट्स है। तो दीज आर ओनली वेरी हाई यील्ड ऑल्सो, ठीक है। तो गाइनी में बहुत सारे नेम्ड होते हैं, मेडिसिन में बहुत सारे होते हैं, मर्मर्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, ठीक है, बहुत हाई यील्ड स्टफ होता है, ठीक है। तो एपोनिम्स वाला टैब आप कभी यूज़ करके देखना, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद PYQ जो है, मैं पूरा चार्ट गया PYQ को, ठीक है। जितना भी PYQ था आई फिनिश देम ऑल। इसके अलावा भी मुझे लगता था कि यू नो ये तो इतने PYQs, बिकॉज मैरो में ना 2018 तक दिया हुआ है आपका PYQ, जो PYQ का सेक्शन है। लेकिन अगर आप पुराने अगर आप पूरा क्यू बैंक सॉल्व करोगे, जो कि मैंने नहीं किया था, ठीक है, तो उसमें ना बहुत सारे पुराने PYQs भी होते थे जो उसके पहले आ रखे होते थे। जो सेरेबेलम का जो नाइटली PYQ होता है, उसमें आप देखना 2014 2015 के भी PYQs दे रखे होते हैं, एंड दे आर वेरी टफ। ओके, 2018 के बाद से तो चलो रिलेटिवली ईजी होता है। 14-15 वाले कुछ पेपर के PYQs आर वेरी वेरी टफ, ठीक है। सो वो थे। तो व्हाट आई यूज़ टू डू कि जब मेरे कोई सब्जेक्ट फिनिश करता था, लेट्स से मैंने सर्जरी आज फिनिश किया, तो मैं सर्जरी को पहले 3 दिन देता था। दैट वाज माय एंटायर स्ट्रेटजी, ठीक है। तो डे 1 पे मैं क्या करता था, डे 1 में मैंने किया चलो BTR प्लस बोनस BTR मैंने किया, ठीक है, और साथ में मैंने PYQs किए उस दिन, ठीक है। डे 2 पे फिर मैंने क्या किया, डे 2 पे बैठ के फिर मैं कस्टम मॉड्यूल करके सबको सॉल्व करता था। लाइक मैं ना सर्जरी को 3 चीज़ों में मैंने डिवाइड कर रखा था एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज डैम्स का भी TND जो है सर्जरी का 3 चीज़ें में डिवाइडेड है। एक आपका होता है जनरल सर्जरी, जिसमें थायराइड एंड ब्रेस्ट भी आता है, ठीक है। एक आपका वाला यूरो वाला पार्ट आता है अलग से, एंड एक आपका GIT वाला पार्ट आता है, ठीक है। तो मैंने भी वैसे ही किया उसको, एंड मैं क्वेश्चंस सारे के सारे अलग से सॉल्व करता था। लाइक आई यूज़ टू डू दिस थिंग, आई यूज़ टू मेक अ कस्टम मॉड्यूल 100 क्वेश्चंस का। उसके बाद मैं जाता था सब्जेक्ट सर्जरी, ऑल टॉपिक्स पे क्लिक करता था। फिर आई यूज्ड टू सिलेक्ट द सिलेक्टेड टॉपिक्स। लाइक अगर मुझे आज GIT रिवाइज करना है, तो मैं अपर अब्डोमेन, लोअर अब्डोमेन, ठीक है, वैसे करके मैं जितने भी होंगे मैं एक एक करके टिक करता था, ताकि मुझे मैक्सिमम MCQs मिले, PYQs ईच सब्जेक्ट का। तो वैसे आई कंप्लीटेड अ लॉट ऑफ PYQs, ठीक है। तो आई थिंक दैट हेल्प्ड इन माई प्रिपरेशन वाला चीज़, ठीक है। तो आप एक बार ट्राई करके देख सकते हो वो वाला चीज़। तो दैट वॉज वन थिंग विच हेल्प मी अ लॉट। इसके अलावा जो था GTs को बार बार रिवाइज़ करना, ठीक है। एंड यार मेहनत तो है, ठीक है, मतलब आई गिव अप ऑन एवरीथिंग इन द पास्ट 2 years। मैंने मूवीज़ देखना पे गिव अप कर दिया। मैं सीरीज़ सिर्फ खाने के वक्त एक फ्रेंड्स होता था शायद, कभी कभार वो देखता था, बाकी वो भी नहीं, ठीक है। इसके अलावा आई गेव अप ऑन गेमिंग, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स टू डू। आई गेव अप ऑन गेमिंग, ठीक है, एंड आई गेव अप ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स।
जब जनवरी में पेपर आपको कैंसिल हुआ, ठीक है, आई रिमेंबर कि उस वक्त ना मेरे को बहुत सीवियर एपिसोड ऑफ फूड पॉइजनिंग हो गया था 2 जनवरी को, ठीक है. इट वॉज सो बैड अ केस ऑफ रिफ्लक्स दैट आई हैड टू अंडरगो मल्टीपल USGs ऑल्सो, ठीक है, बिकॉज डॉक्टर्स को पता नहीं क्या ही शक हो रहा था, ठीक है, अपेंडिसाइटिस एंड ऑल ऑफ दे वर ऑल्सो सस्पेक्टेड बिकॉज बहुत पेन एब्डोमेन था, ठीक है. तो आई हैड टू अंडरगो ट्रीटमेंट फॉर 2 to 3 months. उसके बाद जब वो थोड़ा फिनिश हुआ, मेरे को अचानक से रीनल कॉलिक आने लगा, तो आई वॉज वेरी मच स्केर्ड कि यार स्टोन्स वाला तो कुछ नहीं हो गया, ठीक है. आई वेंट एंड दे फाउंड अ स्टोन बट दे ऑल्सो फाउंड अ स्मॉल एंजियोमाइलाइपोमा इन माई लेफ्ट किडनी. जब वो आया ना यार डायग्नोसिस, मैं मतलब मेरे आंखों से ना आंसू निकल गए. वैसे लाइक कि क्या पढ़ूंगा यार मैं, मतलब आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू मी, ठीक है. मेरे हेल्थ इश्यूज़ इतने सारे आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू मी. आई वॉज एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ माई लाइफ. अगले दिन मेरे नाना जी का डेथ हो गया, यू नो, एंड दैट वॉज वेरी सैड. मतलब आई रिमेंबर आई फ्लू एंड व्हेन आई वाज कैरिंग हिज बॉडी, यू नो, आई हैव नेवर क्राइड ऑन एनी ऑफ माई रिलेटिव्स डेथ. कभी हुआ नहीं बिकॉज आई वॉज रिलेटिवली स्मॉल, बट पहली बार यार नाना जी को देखा ना, मतलब ही वॉज दी ओनली एल्डरली फैमिली जो थे मेरे, एंड इट वॉज़ वेरी सैड. एंड ही यूज़ टू ऑलवेज टेल मी कि यार आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो. ही वॉज काइंड ऑफ माई मोटिवेशन ऑल्सो टू यू नो पास थ्रू ऑल ऑफ दीज स्ट्रगल्स. तो वो था, बहुत सैड था. उसमें 15 days निकल गया. फिर मेरे मामा जी को वहाँ पे यू नो ही वॉज हैविंग TB. आई यूज़ टू यू नो उस टाइम पे मैंने जितना भी प्राइमरी इलाज किया एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, हॉस्पिटल लेके जाना, डायग्नोसिस, ऑल ऑफ दैट स्टफ, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ फैमिली इश्यूज़. तो आई रियलाइज्ड वन थिंग कि यार कभी भी आपका प्रिपरेशन, चाहे आप कितना भी ड्रॉप ले रहे हो ना, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बिना फैमिली इश्यूज़ के कुछ होगा, ठीक है. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होगा ही आपको, चाहे वो आपका जॉब का प्रॉब्लम है, चाहे वो आपका फैमिली का प्रॉब्लम है. मेरी फ्रेंड जो एक और प्रिपेयर कर रही थी विद अ जॉब फ्रॉम नोएडा, हर मदर हैड अ स्ट्रोक, ठीक है. तो शी वॉज देयर बिजी फॉर 2 to 3 weeks इन अपोलो हॉस्पिटल जो है दिल्ली वाला, वहाँ पे. तो देयर इज़ दैट कि आपके प्रिपरेशन में बहुत होगा, बट यार पता है द थिंग इज़ दैट कि वो अंधेरे रातों में भी ना आपको करना पड़ेगा बिकॉज देयर इज़ नो अदर चांस. कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है, ठीक है, कि अभी ना जितना अर्ली आप प्रिपेयर कर स्टार्ट कर सको दैट इज़ बेटर, ठीक है. आप स्टैंडर्ड्स बुक पढ़ो, फर्स्ट ईयर सब स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, सेकंड ईयर पे स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, लेकिन थर्ड ईयर से कुछ भी करके ना धीरे धीरे आप स्टार्ट करो प्रिपेयर करना. आप MCQs करो, ठीक है. फोर्थ ईयर में आकर आप अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ो, बिकॉज अगर आप हॉलिस्टिकली 4 साल पढ़ोगे ना बहुत अच्छे से, मैंने देखा है, तो आपका नीट PG क्लियर करना जो है बहुत ईजी हो जाता है इन फर्स्ट अटैम्प्ट ऑल्सो. अगर इवन इफ ड्यूरिंग इंटर्नशिप आपको लगता है कि चलो यार मेरा बहुत बेस्ट अटैम्प्ट शायद नहीं होगा इस बार, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, एटलीस्ट ट्राई टू डू वट एवर यू कैन, ठीक है. चाहे को थोड़े बहुत GTs दे दो, एटलीस्ट 10 GTs दे दो, यू नो, सारे PYQs कर लो, ठीक है. BTR तो चलो अभी आ गया है, तो BTR इज एक्सेसिबल टू एवरीवन. आप BTR कर लो, या तो कोई भी शॉर्ट मैरो का RR हो गया, आपका प्रेप लैडर हो गया, ठीक है, बहुत कुछ हो गया, आप वो कर लो, ठीक है. तो आप कुछ ना कुछ देखो ताकि आपका फर्स्ट इंटर्नशिप का अटैम्प्ट ही आपका बेस्ट इंटर्नशिप का अटैम्प्ट हो. लाइक मैंने जो अपना इंटर्नशिप वाला अटैम्प्ट दिया था, मैं तो फालतू में दिया था, इट वॉज वेस्टेड, ओके. आई डिड नॉट इवन स्टडी एनीथिंग एंड आई जस्ट वेंट इनटू द पेपर, यू नो, थिंकिंग कि पता नहीं क्या ही मिरेकल हो जाएगा. मिरेकल्स डोंट हैपन लाइक दैट अनटिल एंड अनलेस आप मेहनत करो, ठीक है. इट डजंट हैपन. बीच में मेरे पेरेंट्स की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, यू नो, बहुत बार उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा. आई डेवलप्ड मतलब इतना सारा ट्रॉमा के थ्रू ना, आई डेवलप्ड एक्चुअली OCD. एंड OCD इज़ नॉट यू नो बस कि चीज़ें को ठीक करना एंड वैसा करना. नेगेटिव थॉट्स, एक्सेसिव नेगेटिव थॉट्स इतने कि आपको क्रिपल कर दे, ठीक है. आई गॉट द करेज एंड आई वेंट टू चेक ऑन माई कॉलेज का साइकेट्रिस्ट, ठीक है. मैम डायग्नोज की मेरे को यू नो OCPD का, ऑब्सेसिव कंपल्सिव थॉट डिसऑर्डर का, एंड एंड शी गेव मी मेडिकेशंस बट आई डिड नॉट टेक दम, ठीक है, बिकॉज एग्ज़ाम्स वेर लाइक चलो 1 month दूर. एंड शी सेट कि चलो GA प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इससे, या फिर थोड़े बहुत इश्यूज़ हो सकते हैं, बट यू नो स्लीपीनेस वगैरह भी आ सकता है. बट आई वॉज लाइक कि नहीं होगा, आई नो, बट स्टिल आई वॉन्ट टेक द रिस्क. दैट वॉज अ वेरी बिग मिस्टेक टू डू. अगर आपके साथ ऐसा होता है मेंटल इश्यूज़ को, प्लीज़ टेक केयर ऑफ देम, ओके. मेरे जैसा फालतू के उसको छोड़ मत देना, बहुत दिक्कत होगा बाद में जाके. So there is that. तो आफ्टर ऑल ऑफ दिस वॉज ओवर, द होल फियास्को वॉज ओवर. चलो मेरा एग्ज़ाम सेंटर पहली बार मैंने भुवनेश्वर में भरा था, मेरा कोलकाता में सेंटर आया. फिर मैं कोलकाता गया, वहाँ पे जाके मैंने एग्ज़ाम दिया, ठीक है. फिर एग्ज़ाम की एक रात पहले को आपको पता ही होगा कि आ गया था कि चलो पेपर कैंसिल है. फिर आई केम बैक टू भुवनेश्वर. फिर आई हैड टू ट्रांसफर टू कोलकाता ऑल्सो बिकॉज पापा का यू नो रिटायरमेंट नेजली का आ रहा था, तो ही हैड टू बी ट्रांसफर्ड. तो बीच में 2 हफ्ता ट्रांसफ़र में गया. फिर मैं कोलकाता आया. फिर कोलकाता में आके यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है, आई नो नोबडी हियर, ओके. तो यहाँ पे आके एकदम दोबारा प्रिपेयर करना एंड ऑल ऑफ दैट करना, तो या इट वॉज अ वेरी बिग स्ट्रगल.
अच्छा, सोर्सेज में जो मैंने एक शायद छोड़ दिया था आपका कि पैथो मैंने पढ़ा था ना देवेश मिश्रा सर से, ठीक है, जो DPM ऐप है। और बीच में मैंने एक बार प्रेप लैडर का जो प्रीति मैम है उनसे मैंने पैथो पढ़ा था। आप इन दोनों से पैथो पढ़ोगे ना, मतलब आपको पैथो से प्यार हो जाएगा। डैम्स में भी शगुन मैम है, शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड एट पैथो, ठीक है। तो मतलब लेकिन अगर मैं बेस्ट बोलूँ तो देवेश सर के नोट्स अमेजिंग, आई डोंट नो, ही इज़ अ गॉड ऑफ पैथोलॉजी। एंड अगर मतलब मोटिवेशन फ्रेंड एंड ऑल ऑफ दैट आपको मिलेगा प्रीति मैम में। मतलब शी तो इज़ एन एंजल व्हेन इट कम्स टू पैथो का, ठीक है। शी सेव्ड मी फ्रॉम पैथो, द होल सब्जेक्ट शी सेव्ड मी। यू नो, जब ब्लास्टोमाइकोसिस एंड डेजर्ट रोमैटिज्म के क्वेश्चंस आए थे शिफ्ट 1 में, ठीक है, तो आई वाज लाइक कि चलो मैम के RR में से क्वेश्चंस आ गए एंड आई वाज सो हैप्पी कि वो वाले क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। तो अगर मैं करेक्ट बोलूँ तो मेरे कभी तो GT में चलो 100 से भी ज़्यादा करेक्ट नहीं हुए, लेकिन आई गॉट अराउंड 144 करेक्ट मेरे हुए थे इस बार के पेपर में। एंड अराउंड 44 क्वेश्चंस जो थे मेरे शायद रॉन्ग हुए थे, बाकी मैंने स्किप किया था। तो या दैट वाज द पेपर, माय होल एक्सपीरियंस ऑफ नीट। व्हेन आई वेंट टू गिव दिस पेपर, मेरा तो फिर भुवनेश्वर में सेंटर पड़ा था, तो एग्ज़ाम के पहले चलो मैं भुवनेश्वर गया, जाके पेपर दिया मैंने, ठीक है। एंड दिस वाज द सेंटर जहाँ पे मेरा फर्स्ट टाइम पेपर पड़ा था जब मैंने 2022 में इंटर्नशिप में अटैम्प्ट दिया था। सो इट वाज लाइक अ होल सर्कल कमिंग थिंग वाला कि चलो जहाँ से MBBS शुरू किया वहाँ से ही काइंड ऑफ MBBS होपफुली फिनिश हो, वो वाला जो होल सर्कल वाला होता है। तो आई वेंट इन टू द हॉल, आई वाज वेरी काम एंड एवरीथिंग। एंड मैंने जब मैं सीट पे बैठा पहली बार, मेरे को ना शायद रिग्रेट्स नहीं थे, बिकॉज एग्ज़ाम की पिछली रात को भी आई रिमेंबर टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स एंड दे वर लाइक यार पता नहीं क्या होगा। एंड मेरे को ना बहुत अजीब सा लग रहा था बिकॉज आई वाज टेंशन फ्री। एंड मेरे को डर लगा था मेरे को टेंशन क्यों नहीं हो रहा, आई तो हैव गिवन अप क्या, ठीक है। बिकॉज मेरे उसी वक्त ना दिमाग में ख्याल आ रहे थे कि चलो पेपर जो भी होगा, आई विल गो बैक, आई विल टेक अ जॉब, आई विल प्रिपेयर अगेन, ठीक है। मेरा दिमाग उन चीज़ों में भाग रहा था पूरा, ठीक है। तो एग्ज़ाम के सुबह भी मैं गया, जाके पेपर वगैरह दिया एंड या तो दैट इज़ हाउ द होल थिंग हैपेंड। एंड फिर रिज़ल्ट आया एंड 15,535 आया। आई वुडंट से इट्स एन अर्थ शैटरिंग रैंक, ठीक है। इससे आप बहुत बेटर कर सकते हो अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ो और मेरी गलतियों को अगर आप रिपीट ना करो तो आप तो बहुत अच्छा रैंक लग सकते हो, ठीक है। तो बट या फ्रॉम बीइंग अ वेरी एवरेज स्टूडेंट टू बीइंग अ मिड रैंकर इन नीट पी, चलो देखते हैं, होपफुली आई एम आउट ऑफ दिस रैट रेस। काउंसलिंग में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा ढंग का, होपफुली, ठीक है। तो उसको लेके हम आगे बढ़ सकते हैं, जिंक्स नहीं करेंगे उसको, बट देखते हैं, होपफुली ढंग का कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, उसको लेके आगे बढ़ना है अब। बिकॉज इस रैट रेस से निकलना भी बहुत मुश्किल है। मतलब कभी कभार ना एग्ज़ाम को आप ज़िंदगी बना लेते हो इस एग्ज़ाम को, एंड इतना टॉक्सिक हो जाता है ये वाला चीज़, ठीक है, कि बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा बीच में OPSC भी निकल गया था, ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन। आई एक्चुअली क्लियर दैट एग्ज़ाम जब दोबारा हुआ था, जनवरी या फरवरी में उसका रिजल्ट निकला था। मैंने ज्वाइन नहीं किया और मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी बोला कि भाई तू क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा, बहुत अच्छा बैकअप है, ठीक है। एंड आई रिमेंबर जब सेकेंड बार एग्ज़ाम पोस्टपोन होना, आई वाज लाइक कि यार चलो ज्वाइन कर लेना चाहिए था, ठीक है, क्यों नहीं ज्वाइन किया। बट मुझे याद है जैना मैम हमेशा बोलती थी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, अगर आपका पहला अच्छा अटैम्प्ट है या फिर दूसरा अच्छा अटैम्प्ट है, तो आप अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं है आपके फैमिली में तो आप फुल हार्टेड अटैम्प्ट दो। लेकिन मैं थोड़ा अपना चीज़ अटेंड करना चाहूँगा, मतलब ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपका ये सेकंड या फिर थर्ड अटैम्प्ट है, ठीक है, तो जॉब के साथ अगर पॉसिबल हो पाए ना तो कीजिए, ठीक है। बिकॉज मेरे फ्रेंड्स ने भी जॉब उठाए थे, एंड ट्राई टू एम फॉर अ जॉब की जो ज़्यादा हेक्टिक ना हो, मेडिकल ऑफिसर वाला, ठीक है। बिकॉज पूरा दिन घर पे बैठ के पढ़ना भी ना, वो एक मेंटल हेल्थ पे बहुत गंदा टोल लेता है, ठीक है। तो दैट आई नो। एंड दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट ईजी एट ऑल, ठीक है। और जितने आने वाले पेपर है पता नहीं इससे भी ज़्यादा टफ हो सकता है, ईजी हो सकता है, वॉट एवर, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा अल्टीमेटली कि ट्रस्ट योर टीचर्स, ठीक है, ट्रस्ट देयर सोर्सेज, पढ़ने दो, अच्छे से पढ़ो। अब तो नीट PG का पेपर के बाद तो आपको पता ही लगे होगा कि सिर्फ सुपरफिशियल पढ़ने से नहीं होगा, डीप भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखो, आप बहुत सारे MCQs करो, ठीक है, सिर्फ PYQs के भरोसे मत जाओ, GTs करो, कस्टम मॉड्यूल्स बनाओ, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करो। बिकॉज क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका पढ़ने से उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा जितना आपका क्वेश्चन करने से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वो तो मैंने सीखा है बहुत लात खा के, वेरी ऑनेस्टली। तो वही है, तो आप मेहनत करो, ठीक है, सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा बिकॉज हाई स्टेक्स एग्ज़ाम है, ठीक है। ये एक ज़िंदगी, मतलब ये एक एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी डिफाइन नहीं करता, बट देन अगेन
बार बार ड्रॉप लेने से भी एक बहुत गंदा मेंटल हेल्थ तोल पड़ता है। फिर अगर आप फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर, आपके फैमिली के, आपके पेरेंट्स रिटायर कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी अलग प्रॉब्लम्स भी होता है, फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, आपका एज हो रहा है, आप देख रहे हो आपके आसपास फ्रेंड्स जो है दे आर गेटिंग मैरिड, या फिर सब जो योर इंजीनियरिंग फ्रेंड्स आर गेटिंग सेटल्ड एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, तो बुरा तो लगता ही है, ठीक है। लेकिन देन वी चोज़ दिस प्रोफेशन, ठीक है, हमने इस प्रोफेशन को चूज़ किया है एंड इसमें टाइम लगेगा, बट वी विल ऑल्सो अचीव गुड सक्सेस इन आवर लाइफ, है ना। देर इज़ अ लॉट ऑफ पाथ्स अहेड ऑफ अस, तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। आप मेहनत करते रहो, ठीक है, एंड क्वेश्चंस करते रहो, दैट इज़ द मेन थिंग, ठीक है। जितना आप मेहनत कर सकते हो उतना करो, आपका फुल एबिलिटी करो, ताकि एग्ज़ाम के दिन ना आपको रिग्रेट ना हो, चाहे कैसा भी आपका रैंक है, एटलीस्ट आपको रिग्रेट ना हो, ठीक है। मैंने इतने सारे आईने दी बीच में, ठीक है, एक बार भी मैं क्वालिफाई नहीं हुआ, एंड आई वॉज लाइक कि भाई क्या हो रहा है, एम आई दैट बैड ऑफ अ स्टूडेंट कि एक भी बार आईने क्वालिफाई नहीं कर पाया। बट चलो जो भी है, नीट क्लियर जो भी बोलो है, 92 परसेंटाइल जो भी आया है, ठीक है, चलो वी कुड हैव डन अ लॉट ऑफ बेटर अगर मैंने अच्छे से और पढ़ाई किया होता क्लास के टाइम, जो भी टाइम, ठीक है, बट वी कैन नॉट गो बैक एंड चेंज दैट। तो हो सकता है होपफुली आप मेरे मिस्टेक से सीखो, थर्ड ईयर से पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई, ठीक है, क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज ये मामला उतना ईजी नहीं है, कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, ठीक है। पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। फेलियर्स तो बहुत होंगे, बट यार सिर्फ एक सक्सेस मिलता है ना। मैं भगवान से बस वही मांगता था हर रोज़ कि भाई मैम कि भगवान जी इतने सारे फेलियर्स देखने पड़ रहे, बस एक सक्सेस मिल जाए, ठीक है, बस दैट इज़ ऑल आई नीड, ठीक है। तो दैट इज़ माई स्टोरी, ठीक है। कोई भी आपका प्रिपरेशन जो है बिल्कुल स्मूथ नहीं होगा, देर विल बी अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, ठीक है। रोहन खंडेलवाल सर भी अपने वीडियोज़ में बोलते हैं, ठीक है, इज़ वॉट यू डू ऑन दोज डेज व्हेन यू आर डाउन दैट एक्चुअली मैटर्स, ठीक है। तो आप देखो कि क्या आप कर सकते हो, ठीक है, आपका पूरा एबिलिटी से करो, एंड थिंग्स विल फॉल इन टू प्लेस, ठीक है। आप अपने आप पे थोड़ा विश्वास रखो, ठीक है। एंड एक ही एग्ज़ाम है यार, चाहे मॉक टेस्ट में कुछ हो, ठीक है, एक एग्ज़ाम में जब मैटर करने वाला हो तो उसी में मैटर करोगे ना। तो वही है, मेरा दोस्त मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाता था, ठीक है, ही यूज्ड टू गेट 2 to 3 के इन मॉक टेस्ट इन एवरी टाइम मैरो का, ठीक है। हमको लगता था वही निकालेगा, उसका मेरे से पीछे रैंक आया है, ठीक है। सो देयर इज़ दैट, मैं तो वही हैरान था भाई कैसे, तो वही है, एग्ज़ाम अनप्रेडिक्टेबल भी बहुत है, ठीक है। तो आप करते रहो, आप अपने टीचर्स का जो शेड्यूल है आप फॉलो करो, ठीक है। आपके टीचर्स जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं आप करो, आप खुद से क्वेश्चंस करो, आप जितना क्वेश्चंस पॉसिबल है कर पाओ, ठीक है। तो या दैट इज़ माई स्टोरी, एंड होपफुली आई विल सी यू इन अनदर वीडियो फ्यूचर में, रेसिडेंट बन के ऑन द अदर साइड। टिल देन थैंक यू फॉर हियरिंग माई रैम्बलिंग्स। बहुत लंबा वीडियो हो गया, बट आई थिंक आई हैड टू डॉक्यूमेंट दिस, एटलीस्ट फॉर माई सेल्फ। अगर कोई भी नहीं देख रहा है तो चलो एटलीस्ट फॉर माई सेल्फ आई विल डॉक्यूमेंट ताकि फ्यूचर नीट एसएस में कि जाके भाई पढ़ ले, फर्स्ट ईयर से अच्छे से पढ़ नीट एसएस के लिए, ठीक है। बिकॉज आगे भी बहुत एग्जाम्स है, ठीक है, ये तो बस शुरुआत है, असली स्ट्रगल तो बिगिन होता है व्हेन यू क्लियर नीट पीजी, काउंसलिंग का टेंशन होता है, फिर आप रेसिडेंसी में घुसते हो, वो तो अलग ही बॉल गेम होता है, जो मैंने सुना। अभी तो मैं घुसा भी नहीं हूँ, अभी से डर लग रहा है उसके लिए, बट ठीक है, चलो एवरीथिंग विल फॉल इन टू प्लेस, एंड या I hope you do your very best. Thank you for listening to me once again, and